Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see about the RK bacteria and U bacteria. Last time we have seen about the kingdom Monera. अब ये जो RK bacteria और U bacteria हैं ये दोनों भी किस में आते हैं? kingdom Monera में ही included हैं. Yes. Now these RK bacteria they are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features. अब इनका जो cellular feature है they are somewhat different than other bacteria. Why they have somewhat different cellular features? Because these bacteria they are mainly found in extreme environments. अब extreme environments मतलब क्या कि जहाँ पे excess heat रहेगा और you can say excess salinity रहेगी. In those conditions these bacteria can be obtained. So if these bacteria they are found in extreme environments तो इनको क्या बोला जाएगा? Extremophiles. Now, they are found in a variety of places from volcanic craters to salty lakes and hot springs. So you can imagine कि ये कहाँ कहाँ present होते हैं जहाँ पे excess heat है, जहाँ पे excess salty water है, salinity है, तो ऐसी जगह पे ये वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं. So their ability to withstand such hostile environments speaks of their capacity to survive in very severe conditions. Yes, see अब ये volcanic craters, salty lakes और hot springs ऐसी जगह पे पाए जाते हैं. So इसी से ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने severe condition पे भी survive कर सकते हैं. Yes, so the bacteria that can withstand with high salinities they are said to be as halophiles. While those that can withstand with extreme temperature उनको क्या बोला जाएगा? They are the thermophiles. Now a very common example I will give you is of methanogenic bacteria. अब ये जो methanogenic bacteria है कहाँ पे पाया जाता है? These bacteria are found in the gut of ruminants. अब ये ruminants मतलब क्या कि ऐसे animals जिनका stomach 4 chamber में divide होता है, okay? और ये हमेशा अपना जो food है उसको rechew करते हैं. Fine. So they are said to be as ruminants. Now, for example, cows and buffaloes. So these bacteria help in production of methane in biogas. अब ये जो methanogenic bacteria है कहाँ present रहता है? ये ruminants के gut में present रहेगा. Gut means उनके stomach में, intestine में. फाइन वहां पे प्रेजेंट रहेगा. सो ये जो बैक्टीरिया है किस में हेल्प करेगा? दे मेनली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन बायोगैस. सो this was all about RK bacteria. Okay. Now let's start with U bacteria. अब ये जो U bacteria है they are also said to be as true bacteria. अच्छा, here one thing I would like to tell you. बायोलॉजी में whenever the term is used EU तो इसका मतलब होता है true. It simply means true. तो EU यहाँ पे पहले ही लिखा है. It means true और bacteria. तो मतलब they are referred as true bacteria. And they have cell wall of peptidoglycan. Now what does this term mean? Peptidoglycan का मतलब क्या होता है कि जो सेल वॉल है इसका ये पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड से बना है. ओके. नाउ पॉलीमर ऑफ शुगर का मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर? ये जो पॉलीमर ऑफ शुगर है ये मेनी शुगर्स मिला के पॉलीमर ऑफ शुगर. ओके, चेन ऑफ शुगर्स, बहुत सारे शुगर्स एक साथ आके क्या बनाते हैं? चेन ऑफ शुगर्स एंड दे फॉर्म पॉलीमर ऑफ शुगर्स और अमाइनो एसिड. दीज बोथ टुगेदर दे फॉर्म पेप्टिडोग्लाइकन. सो now these U bacteria they are also found as autotrophs and heterotrophs. अब ये जो U bacteria हैं ये इसको आप एज अ ऑटोट्रॉफ भी पा सकते हो या हिटोट्रॉफ्स भी. नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉफ? ऑटोट्रॉफ मतलब क्या? द वन हु प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ. ओके, वो अपना एनर्जी क्या करेगा? खुद ही प्रिपेयर करेगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. ओके.
यहाँ पे दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, ओके, ये वाले जो रहेंगे दीज बैक्टीरिया कैन बी फोटोसिंथेटिक और दे कैन बी कीमोसिंथेटिक। सो विद द हेल्प ऑफ लाइट या तो केमिकल यूज करके वो क्या करेंगे, अपना एनर्जी खुद प्रिपेयर करेंगे, ओके, अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। सो नाउ एंड द नेक्स्ट वन इज हिटोट्रॉफ्स। हिटोट्रॉफ्स मतलब क्या, हिटरोट्रॉफ्स मतलब क्या कि जो दूसरे पे डिपेंड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेड बॉडी पे सरवाइव करते हैं, वो उसको डिकम्पोज करेंगे, ओके, ब्रेक डाउन करेंगे किसी चीज को। सो दीज आर हिटरोट्रॉफ्स। हिटरोट्रॉफ्स में कौन कौन से आ जाएंगे, डिकम्पोजर्स मेनली, और जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड केमिकल, ओके, आइदर विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ केमिकल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ऑटोट्रॉफ्स। पहले क्या देखेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। नाउ दीज ऑटोट्रॉफ्स दे आर मेनली फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक मतलब क्या कि दे यूज सनलाइट एंड दे कैन प्रिपेयर देयर फूड, ओके, अपना एनर्जी वो प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फोटोसिंथेटिक लाइक क्लोरोबियम, फॉर एग्जांपल क्लोरोबियम। अब ये जो क्लोरोबियम है इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ओके, एंड क्रोमैटियम। सो दीज टू आर दी फोटोसिंथेटिक। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब क्या, कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर। अब ये वाले जो रहेंगे ऑटोट्रॉफ्स जो हैं दे आर मेनली मल्टी सेलुलर, फिलामेंटस, लिविंग इन फ्रेश वाटर। मतलब इनका जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल से नहीं बना है, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स प्रेजेंट है इसमें, ओके। फिलामेंटस, फिलामेंट जैसा है इनका बॉडी, कैसा बॉडी का शेप कैसा रहेगा, फिलामेंट जैसा। सो दे आर फिलामेंटस, लिविंग इन फ्रेश वाटर। कहाँ पे पाए जाते हैं ये वाले, फ्रेश वाटर में। अब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा रहेगा, जस्ट एज दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बिकॉज ये प्रोकैरियोट्स हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसा ही रहेगा। नाउ देर आर सम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जैसे कि मैंने बोला कि ये ऑटोट्रॉफ्स जो है फोटोसिंथेटिक रहते हैं, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी तो होने चाहिए जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। सो कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स। दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। नाउ नेक्स्ट, फिलामेंट्स शो हेटेरोसिस्ट। नाउ व्हाट इज दिस हेटेरोसिस्ट, ये जो हेटेरोसिस्ट है, सी फिलामेंट शोज हेटेरोसिस्ट मतलब क्या कि ये जो नॉस्टॉक है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा दिखता है, वो फिलामेंटस लाइक फिलामेंट जैसा दिखता है। तो अब ये जो बहुत सारे सेल से बना हुआ है नॉस्टॉक, इनमें बीच बीच में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, दे आर सेड टू बी एज हेटेरोसिस्ट। सी यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर, ये जो पिक्चर है ये नॉस्टॉक का है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक ही सिंगल सेल से नहीं बना है बल्कि इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, यस, और वो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ वेजिटेटिव सेल, ओके, हेटेरोसिस्ट, और उसमें म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट रहेगा। नाउ ये जो वेजिटेटिव सेल है वो उसी से क्या है, इसका बॉडी बना है नॉस्टॉक का। अब उसके बीच बीच में वेजिटेटिव सेल के बीच बीच में क्या प्रेजेंट रहेगा, हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट है, ओके। अब ये हेटेरोसिस्ट क्या करता है, व्हाट इट डज, इट सिंपली फिक्सेस नाइट्रोजन, ओके, इसमें विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रोजिनेज। अब जो हवा में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो प्लांट्स नहीं ले सकते, ओके, वो सिर्फ वही नाइट्रोजन ले सकते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट है। तो ये फिक्सिंग का काम कौन करता है, नॉस्टॉक, यस। सो अब नॉस्टॉक में भी एग्जैक्टली कौन सा सेल परफॉर्म कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सिंग, हेटेरोसिस्ट, फाइन। नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि म्यूसिलेज शीथ प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, म्यूसिलेज शीथ। तो ये जो है म्यूसिलेज शीथ, ये एक स्लाइम लेयर होती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर प्रेजेंट है, ओके, सेल के बाहर प्रेजेंट है, ये पूरा एक लेयर फॉर्म कर लिया है इसने नॉस्टॉक के सराउंडिंग में, फाइन। सो इट इज सेड टू बी एज अ म्यूसिलेज शीथ, वो एक शीथ, एक स्लाइम लेयर है। Now next is heterotrophs. We are going to see about heterotrophs. Here we end up with the autotrophs. अब heterotroph मतलब क्या कि they are depend on someone. वो ऐसा नहीं है कि उनको वाटर मिला, सनलाइट मिला तो वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेंगे, नो, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके, ऐसा नहीं है, ओके।
ये किस पे डिपेंड है, ये मेनली डिपेंड है दूसरों के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल. सो दे आर मोस्ट अबंडेंट. ओके, दे आर मोस्ट अबंडेंट. ये एक्सिस में पाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स. मेनली ये जो बैक्टीरिया है क्या काम करते हैं, डिकम्पोज, किसी भी चीज को डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं. एंड दे आर नोन फॉर ब्रेकिंग डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इन सिंपल मॉलिक्यूल्स और मिनरल्स में कन्वर्ट कर देंगे. जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या करेंगे, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे या तो उसको मिनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ दे कैन बी एनएरोब्स. अब ये जो है दे कैन ऑल्सो बी एनएरोब्स. एनएरोब्स मतलब क्या कि दे कैन ऑल्सो सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन नहीं है देन टू दे कैन सर्वाइव. तो ये मेनली लैक्टोबैसिलाई करके जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को क्या करता है, दही में कन्वर्ट करता है. लैक्टोबैसिलाई करके जो बैक्टीरिया है इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड. सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया. और ये जो बैक्टीरिया है ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सर्वाइव कर पाता है. फाइन. सो नेक्स्ट इज व्हाट, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. अब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए विच बैक्टीरिया वर्क्स, मेनली स्ट्रेप्टोमाइसिस. स्ट्रेप्टोमाइसिस करके जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. इट इज मेनली यूजफुल फॉर द एंटीबायोटिक प्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग एंड डिग्रेडिंग ऑयल. तो ये जो बैक्टीरिया है हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो ऑयल को भी डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं. And also they are useful in the composting, in the compost preparation. Now some of them are pathogens. अब इसमें से ऐसा नहीं है कि सारी यूजफुल ही है. Till now we have seen कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है. Yes, एजेटोबैक्टर जो है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है. देन मिल्क को दही में कन्वर्ट करा रहा है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा है. ऑयल कहीं गिर गया है या फ्लो हो गया है तो उसको क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा. यस, खत्म कर देगा, खा जाएगा उसको. टिल नाउ वी हैव सीन ऑल दी यूजफुल थिंग्स यस बाय दिस बैक्टीरियाज. बट ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूजफुल ही होते हैं. सम ऑफ देम आर ऑल्सो पैथोजेंस. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी दे ऑल्सो कॉज डिजीज. कौन कौन से इसमें आ जाएंगे, टाइफाइड. ओके, तो देन द नेक्स्ट इज कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टिटनस. तो ये सारी चीजें भी ये बैक्टीरिया से क्रिएट होती हैं. यस, देर आर सम बैक्टीरिया विच ऑल्सो कॉजेज डिजीज. Fine. Now the last topic in case of the kingdom Monera is mycoplasma. Okay, it also consists of mycoplasma. अब ये जो mycoplasma है, these are the smallest of the living forms. ये जो हैं बहुत ही छोटे हैं. They are the smallest and they do not have cell wall. इनके पास जो है cell wall नहीं होती है. Yes, and these bacteria are mainly pathogenic. ये जो है mainly pathogenic रहेंगे, useful वाले नहीं होंगे, mainly harmful ही रहेंगे. And they are found resistant to common antibiotics. जो common antibiotics रहेगी ये resistant होते हैं and वो common सी जो antibiotic है वो इसको मार नहीं सकती है. They are resistant. Why they are resistant? Because इनके पास cell wall ही absent है. Okay, because of the absence of cell wall these bacteria are resistant to some common antibiotics. So here we end up with this video. In next video we are going to start with the kingdom Protista.